یہ ہے جنات کے بچوں کی کہانی، ایک ایسی حقیقت جس نے ایک خاندان کی زندگی اجیرن بنا دی۔ ایک درخت کے کٹنے سے شروع ہوا یہ قصہ آگے چل کر ایسا موڑ لایا جہاں ماں باپ کو اپنے ہی بچوں کی جان بچانے کے لیے جنات سے مقابلہ کرنا پڑا۔ کیا انسان اپنی نیکیوں سے جنات کے وار کو روک سکتا ہے؟ آئیے سنتے ہیں جنات کے بچے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی فیملی کی جس نے اپنے اچھے اخلاق سے بری چیزوں کو بھی اپنے حق میں بہتر کر لیا۔ بے شک انسان اللہ اور اس کی کلام کی مدد سے مشکل وقت سے نکل سکتا ہے، بس یقین کامل ہونا چاہیے۔ علیزے اور عاقب کی شادی کو 5 سال ہو گئی تھے۔ اللہ پاک نے انہیں رحمت اور نعمت دونوں سے نوازا تھا۔ 4 سال کا شانزیل اور 3 سال کی پریحان ان کی خوشیوں کا مرکز تھے۔ عاقب لاہور میں ایک بہت اچھے ہوٹل میں جاب کرتا تھا۔ اس ہوٹل کی ایک برانچ مری میں بھی تھی۔ اچانک عاقب کی پوسٹنگ مری والے ہوٹل میں ہو گئی۔ ایک دن یہ سب لاہور سے مری کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں ہوٹل کی طرف سے انہیں خوبصورت گھر دیا گیا۔ 2 ماہ سکون سے گزر گئے۔ ایک رات یہ سب کھانا کھا رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ عاقب نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ اس وقت اتنی برف باری میں 2 بچے جن کی عمر مشکل سے 8 سے 10 سال کے درمیان تھی کھڑے تھے۔ ان کا رنگ بالکل سفید انڈے جیسا اور آنکھیں نیلی تھیں۔ عاقب نے اپنی زندگی میں ایسے بچے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انکل، عاقب چونک کر خیالوں سے واپس آیا۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ انکل، ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ابو کار مکینک کو لینے گئے ہیں، ہم کچھ دیر یہاں بیٹھ جائیں؟ باہر برف باری کی وجہ سے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے۔ عاقب نے پوچھا، کہاں ہیں آپ کے ابو؟ وہ انکل سامنے کھڑے ہیں۔ عاقب نے سامنے دیکھا تو ایک کالی کار کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا، لیکن دھند کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بیٹا آپ لوگ اندر آ جائیں۔ علیزے، علیزے، جی جی آ رہی ہوں، کون آیا ہے؟ یار ان بچوں کو اندر لے جاؤ اور بچوں کے کمرے میں ہیٹر کے پاس بٹھا دو، باہر بہت سردی ہے، ان سے کھانے کا بھی پوچھ لو۔ جی ٹھیک ہے۔ بچوں کو کمرے میں بٹھا کر واپس آتے ہوئے علیزے بولی، آپ بھی حد کرتے ہیں، آج کل کے حالات کیسے ہیں اور آپ نے ان بچوں کو گھر میں آنے دیا؟ عاقب ہنستے ہوئے بولا، علیزے تم بھی کبھی کبھی اپنی امی جیسی لگتی ہو، بالکل CID کی طرح۔ یار معصوم بچے ہیں اور ان کے ابو بھی تو باہر ہیں نا۔ چلو میں ایک کام کرتا ہوں، باہر جا کر ان صاحب کی مدد کرتا ہوں، کیا پتا گاڑی میں کیا مسئلہ ہے۔ پہلے کھانا تو کھا لو، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یار واپس آ کے کھاتا ہوں، تم ایسا کرو بچوں کو کھانا دو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ اللہ کے امان میں۔ علیزے جب کمرے میں واپس آئی تو دیکھا کہ ان کے گھر میں ایک بلی بیٹھی ہے، بہت پیاری سی، مگر وہ بلی بچوں کو دیکھ کر عجیب انداز میں آوازیں نکال رہی تھی۔ علیزے نے دل میں سوچا، لگتا ہے ان بچوں نے کچھ کیا ہے، توبہ ہے، کیسے شیطان بچے ہیں۔ پھر اس نے بچوں سے کہا، بیٹا آپ لوگوں کو کھانا دوں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں آنٹی، ہم کھانا اپنے گھر جا کے کھائیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم لوگوں کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں، تب تک کارٹون دیکھ لو۔ بچے کارٹون دیکھنے لگے۔ علیزے ان کے لیے دودھ لے کر آئی۔ جیسے ہی اس نے دودھ دیا، بچوں نے ایک ہی سانس میں پورا دودھ ختم کر دیا۔ علیزے پریشان کھڑی رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنا گرم دودھ تو بڑا آدمی بھی ایک سانس میں نہیں پی سکتا۔ وہ ڈر کے مارے عاقب کو فون کرنے لگی، مگر برف باری کی وجہ سے سگنل نہیں آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بیل کی آواز آئی۔ علیزے نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے عاقب کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ کہاں ہیں بچوں کے والد؟ علیزے نے پوچھا۔ یار میں پورا راستہ دیکھتا ہوا آیا، مگر نہ مجھے کوئی گاڑی ملی اور نہ وہ صاحب۔ برابر والے شکیل صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، بچوں سے ان کے گھر کا نمبر لے کر فون کرتے ہیں۔ علیزے کی برسوں سے عادت تھی کہ وہ تہجد کے وقت سورہ بقرہ اونچی آواز سے پڑھتی تھی۔ آج بھی اس نے وضو کر کے عشاء کی نماز پڑھی، تسبیح پڑھی، سورہ ملک پڑھی، مگر دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ عاقب، اتنا ٹائم ہو گیا، ان کے ابو نہیں آئے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ نہیں یار، تم پریشان نہ ہو، وہ آنے والے ہوں گے۔ اگر وہ نہیں آئے تو میں صبح بچوں کو پولیس اسٹیشن لے جاؤں گا، وہ انہیں والدین سے ملا دیں گے انشاءاللہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ آرام کریں، میں بھی کچن کا کام کر کے کمرے میں آتی ہوں۔
आकिब जमाई लेते हुए बोला, हाँ यार, आज मैं भी बहुत थक गया हूँ। अलीज़े जैसे ही किचन में आई, उसे हैरत हुई कि दूध की पतीली बिल्कुल खाली है, जबकि बच्चों को दूध देने के बाद उसमें काफ़ी दूध बाकी था। वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक आकिब की आवाज़ आई, जी, क्या हुआ? मगर कमरे में आते ही अलीज़े खुद परेशान हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका बेटा शांजिल ठंडी जमीन पर सोया हुआ है। आकिब, ये क्या? शांजिल जमीन पर कैसे सो गया? यार मुझे क्या पता, मैं खुद तुमसे पूछ रहा हूँ। आकिब, यकीन करें, मैंने खुद इसे पलंग पर सुलाकर गई थी। चलो परेशान ना हो, बच्चा है, नींद में चलकर जमीन पर सो गया होगा। नहीं आकिब, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है हमारे घर में कुछ गलत होने वाला है। मेरा दिल घबरा रहा है। अरे यार, तुम भी ना ज्यादा वहम पालती हो। चलो तुम ऐसा करो, वुजू करो और आराम से अपनी इबादत करो, मैं बच्चों के पास हूँ। अलीज़े वुजू करके सूरतुल बकरा पढ़ना शुरू करती है। पढ़ते पढ़ते उसकी तबीयत अजीब होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसके कंधों पर वजन हो। या अल्लाह, आज मेरे साथ क्या हो रहा है? जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो उसे अपनी अम्मी की बात याद आती है। अगर कभी तबीयत ऐसी हो कि पढ़ ना सको तो मोबाइल में लगा कर सुन लिया करो। अलीज़े वहीं बैठकर मोबाइल में सूरतुल बकरा लगा देती है। आंखें बंद करके सुकून से सुनती जाती है और रोती जाती है। दिल ही दिल में दुआ मांगती है, मेरे मौला, मेरी मदद कर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं और मेरा घर किसी मुसीबत में है। तुझे पंचतन पाक का वास्ता है, मुझ पर, मेरे शौहर और औलाद पर अपना करम फरमा, आमीन। दुआ मांगते मांगते वो लेट जाती है और आंख लग जाती है। ख्वाब में देखती है कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी लंबी शाखों ने एक तरफ उसके शौहर को बांधा है और दूसरी तरफ शांजिल को। अलीज़े की अचानक आंख खुलती है। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। वो पानी पीने किचन में जाती है तो देखती है कि वो बच्चे कमरे में मौजूद नहीं हैं। पूरा घर देख लेती है। डर के मारे आकिब को जगाती है। आकिब, आकिब। क्या हुआ यार, सोने दो। आकिब प्लीज उठो, बच्चे कहीं चले गए हैं। अरे बेगम, नींद में हो क्या? बच्चे कहाँ जाएंगे? यही वॉशरूम में होंगे। नहीं आकिब, पूरे घर में देख लिया, वो कहीं नहीं है। अच्छा रुको, मैं देखता हूँ। आकिब भी पूरा घर देख लेता है मगर बच्चे कहीं नहीं मिलते। अलीज़े, तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं गली में देख कर आता हूँ। प्लीज जल्दी आना आकिब, मुझे डर लग रहा है। यार डरो नहीं, मैं जल्दी आता हूँ। अलीज़े ने दिल में कहा, अल्लाह जी रहम फरमा हम पर, कहीं आकिब इन बच्चों की वजह से किसी मुसीबत में ना आ जाए। थोड़ी देर बाद आकिब घर वापस आया। मिले बच्चे? अलीज़े ने घबरा कर पूछा। नहीं यार, पता नहीं क्या मामला है, कल इनके वालिद कहीं चले गए और आज ये बच्चे। आकिब, माने या ना माने, मुझे ये सब कुछ और ही लग रहा है। नहीं अलीज़े, वहम ना करो, हमें कोई नुकसान तो नहीं हुआ। चलो मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, तुम भी नमाज पढ़ो, सब ठीक हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। सुबह आकिब को होटल रवाना करके अलीज़े थोड़ी देर आराम करती है। नींद में उसे ऐसा लगता है जैसे सामने दीवार से बालों की लंबी लंबी लटें निकल रही हैं और उसके गले के गिर्द लिपट रही हैं। उसका सांस बंद होने लगता है, सीने पर वजन महसूस होता है। अलीज़े को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मरने वाली है। अल्लाह जी, मौत बरहक है मगर मुझे अभी जीना है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह जी मुझे जिंदगी दे दे, ये एक बेबस माँ की फरियाद है। अचानक अलीज़े की आंख खुल जाती है। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। जब वो फ्रिज से बोतल लेती है तो ढक्कन तक हाथ से नहीं खुलता, वो इतनी कांप रही होती है। आखिर पानी पीकर थोड़ी हिम्मत आती है। फौरन बच्चों के पास जाकर उन्हें खूब प्यार करती है, रोती है और शुक्र अदा करती है कि कुछ नहीं हुआ। रात को जब आकिब वापस आया तो अलीज़े ने सुबह वाला सारा वाकया सुनाया। आकिब ने कहा, परेशान न हो, तुमने रात वाली बात को ज्यादा संजीदा ले लिया, इसी वजह से ख्वाब में डर गई होगी। जी शायद आप सही बोल रहे हैं। खाना अभी लगाऊं या देर से? थोड़ी देर में खाते हैं। अलीज़े, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक परेशानी है। आज दिन को होटल के करीब पुलिस आई थी। पुलिस? पुलिस? मगर क्यों? और इस बात को लेकर आप क्यों परेशान हैं? पुलिस उन 2 बच्चों को तलाश कर रही है जो हमारे घर आए थे।
वो बच्चे, मतलब वो अभी तक अपने वालिदैन को नहीं मिले? आप ऐसा करें आके पुलिस को सब बता दें। पागल हो क्या? उनको क्या बताऊंगा? बच्चे आधी रात को कहाँ चले गए? आकिब, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कल से हमारे साथ क्या हो रहा है। आप ऐसा करें, शाह साहब को फोन करके सब पूछें, क्या पता किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया, हम परेशान होकर वापस लाहौर चले जाएं। आपकी मरी वाली पोस्टिंग से कोई भी खुश नहीं था कि आपकी इतनी तरक्की हो रही है। आपको याद नहीं जब परिहान पैदा होने वाली थी उस वक्त भी घर से कितने तावीज़ निकले थे? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शाह साहब ने इलाज किया तो सब ठीक हो गया था। वैसे वहम नहीं करना चाहिए, मगर जमीला भाभी के उल्टे कामों से सब वाकिफ हैं। क्या क्या नहीं किया उन्होंने। बस ये कि मेरी शादी तुमसे ना हो, उनकी बहन से हो जाए। चलो मैं कल सुबह शाह साहब को फ़ोन करता हूँ। चलो मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चों को ले आओ। कल से इस परेशानी में बच्चों को भी टाइम नहीं दिया। जी अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरे शहजादों, क्या कर रहे हो? पापा, भाई मेरे को मारता है। क्यों भाई, तुमने क्यों मेरी बेटी को मारा? नहीं पापा, मैंने नहीं मारा, ये खुद तंग करती है, मेरा गेम तोड़ दिया इसने। बुरी बात है बेटा, बहन है, ख्याल रखा करो। जी पापा, अब नहीं मारूंगा। गुड बेटा। चलो बेटा, अब खाना खाते हैं, फिर सोना भी है ना। रात के 2 बजे का टाइम था। आकिब को ऐसा लगा जैसे कोई उसे आवाज दे रहा हो। उस वक्त कौन बुला रहा होगा? आकिब को जो घर मिला था उसकी बैक साइड पर एक लॉन बना हुआ था। उसे वहां से अलीजे की आवाज आ रही थी, जैसे वो किसी तकलीफ में हो। अल्लाह रहम करे, इस वक्त अलीजे लॉन में क्या कर रही है? वो जैसे ही लॉन में आया, सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने अलीजे बाल खोले बैठी थी और शांजिल जमीन पर लेटा हुआ था। अलीजे, अलीजे, क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? उफ मेरे अल्लाह! जब अलीजे ने सर उठा के देखा, वो अलीजे के रूप में क्या बला थी, हैबतनाक चेहरा। कौन हो तुम? इतना बोल के मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो मैं अपने पलंग पर था और अलीजे रो रही थी। वो अलीजे, वहां लॉन में तुम थी? नहीं आकिब, मैं तो यहीं थी। जब मैं सुबह सोकर उठी तो आप किचन के पास गिरे हुए थे। बहुत मुश्किल से मैं आपको रूम में लेकर आई। आपको बहुत तेज बुखार था। कब से आप पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही हूँ। अभी आपको होश आया है। आप ठीक तो है ना? क्या देखा था आपने और किचन में क्या करने गए थे? मुझे अलीजे को कुछ नहीं बताना चाहिए, ये ऐसे ही परेशान हो जाएगी। क्या हुआ आकिब, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, शायद बुखार की वजह से मुझे चक्कर आ गए थे, पानी पीने किचन में गया था। अच्छा, चलिए मैं आपके लिए नाश्ता जाती हूँ, आप नाश्ता करके दवा खा लें। अलीजा जैसे ही किचन में आई, उसकी चीख आकिब को सुनाई दी। वो भागता हुआ किचन में आया। क्या हुआ? और सामने का मंजर देखकर वो हैरान हो गया। उसका बेटा शांजिल जमीन पर बैठा हुआ दूध की पतीली को चाट रहा था, जैसे कोई जानवर जबान से चाट रहा हो और अजीब सी आवाजें निकाल रहा हो। आकिब, ये क्या कर रहा है? शांजिल, ये क्या कर रहा है? आकिब ने अलीजे का हाथ दबाकर चुप कराया। इतने में जैसे ही शांजिल ने उनकी तरफ देखा, शांजिल की आंखें एकदम लाल सुर्ख हो गईं और जैसे ही वो उठा, ऐसा लग रहा था कि शांजिल हमें जान से मार देगा। इतने से बच्चे में इतना जुनून! जैसे ही वो उठा, उसने अलीजे को जोर से धक्का दिया और कमरे की तरफ चला गया। मैं अलीजे को उठाने लगा तो वो जोर से बोली, आप वहां जाएं, कमरे में परिहान भी है, वो उसे कोई नुकसान न दे। मैं ये सुनकर भागा, लेकिन जब तक पहुंचा कमरा बंद हो चुका था। मैंने जोर से दरवाजा बचाते हुए कहा, शांजिल, दरवाजा खोलो बेटा, मैं आपका पापा हूँ। इतने में अलीजे भी आ गई और रोते रोते शांजिल को आवाज देने लगी, आकिब आप यहीं रुकिए, मैं चाबी लेकर आती हूँ। इतनी देर में कमरे से ऐसी आवाजें आने लगीं जैसे कोई कुश्ती लड़ रहा हो, और परिहान के रोने की आवाज सुनकर तो समझो मेरी जान ही निकल गई। चाबी से जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर तो जैसे कयामत आ गई थी। मेरा बच्चा छत पर उल्टा लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पूरी छत पर घुमा रहा हो। अलीजे ने रोते रोते आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। इतने में मेरा बच्चा सीधा जमीन पर आकर गिरा। क्या हाल होता है उस माँ का जिसका कलेजा ऐसे वक्त में तड़प रहा हो। आकिब जैसे ही शांजिल के पास गया, माँ की दुआ या कोई सदका नेकी काम आ गई। शांजिल कुशन पर आकर गिरा। जैसे ही उसे पलंग पर डाला,
लगा जैसे वो गहरी नींद सो रहा हो। शांजेल, उठो बेटा, आंख खोलो। या अल्लाह, मेरे बच्चे को कुछ ना हो। तुझे करबला के अली असगर का वास्ता, मेरे लाल को कुछ ना हो। हमारे किसी गुनाह की सज़ा औलाद की सूरत में ना मिले। थोड़ी देर में शांजिल ऐसे उठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। अलीज़े, ये ठीक है, तुम परेशान ना हो। अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्राने के नफल पढ़ के आती हूँ और इसका सदका देती हूँ। थोड़ी देर में जब अलीज़े आई तो आकिब फैसला कर चुका था कि वो अभी शाह साहब को फ़ोन करेगा। वो शाह साहब को फ़ोन करके सब बताता है। शाह साहब बोले, मुझे तुम 1 घंटे बाद फ़ोन करना। अल्लाह अल्लाह करके 1 घंटा गुजरा। आकिब ने दोबारा फ़ोन किया। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी आकिब बेटा, मैंने सब देख लिया है। मसला तो बहुत गंभीर है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। जी शाह साहब, मुझे अल्लाह के बाद आप पर यकीन है, आप मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल लेंगे। देखो बेटा, तुम्हें पता है अब मेरी वो उम्र नहीं कि सफ़र करके तुम्हारे पास आ सकूं। मैं कुछ सामान भेज रहा हूं फरहान के साथ। तुम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करो और मुझे हालात से आगाह करते रहो। जी ठीक है शाह साहब। रात तक फरहान तुम्हारे पास आ जाएगा, बाकी मैं शांजल पर अभी हिसार कर देता हूँ और पढ़ाई भी शुरू करता हूँ। उसकी तरफ से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आकिब, अलीज़े गेस्ट रूम साफ करवा लो, शाह साहब का बंदा आ रहा है। फरहान रात देर हो जाएगी तो यहीं आराम कर लेगा। जी ठीक है, मैं करवा देती हूँ। सुनो जी, शांजिल क्या कर रहा है? अभी तो कार्टून देख रहा है, मगर उसके चेहरे से लग रहा है जैसे काफी देर से बीमार हो। सही बोल रही हो। चलो परेशान न हो, अल्लाह मालिक है। रात के 11 बजे फरहान आ गया। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आओ बैठो भाई साहब, घर तो बहुत खूबसूरत है। हाँ जी, होटल की तरफ से मिला है। फरहान पहले खाना खा लो। भाई, खाना तो रास्ते में खा लिया था, चाय पीऊंगा भाभी के हाथ की, मगर पहले ये सामान समझ लो। ये 7 हांडियां हैं जो रात 12 बजे के बाद आग पे रखनी है और सुबह अजान के वक्त उतार देनी है। बस ध्यान ये रखना है कि हांडी टूटे ना किसी भी वजह से। और ये कुछ तावीज़ हैं, एक आपके गले का है, एक शांजिल का। बाकी ये पीने के तावीज़ हैं, पूरे घर वालों ने पीने हैं। मंजिल पढ़ के इसका पानी खुद भी पीना है और घर के कोनों में डालना है। ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, एक बात, इस हांडी को सुबह पानी में डाल के आना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। जी ठीक है, मैं समझ गया। आप हांडी आज की रात से ही रख लें। पहली रात और दूसरी रात हांडी वाला मामला सही चल रहा था, मगर तीसरी रात की 3 बजे हांडी खुद से चूल्हे पर टूट गई। और खुदा की पनाह, ये कैसी बदबू आ रही है। उफ मेरे खुदा, क्या बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दाल जला दी हो या सड़ा हुआ गोश्त फेंका हो। क्या करें आकिब, शाह साहब को फोन करें? नहीं यार, इस वक्त करना मुनासिब नहीं है। तुम ऐसा करो, फरहान को फोन करो, क्या पता उसे कुछ पता हो। हाँ ये ठीक था, मगर जब फरहान को फोन मिलाए तो उसका नंबर बंद जा रहा था। अल्लाह रहम करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। आकिब, आपका तावीज़ कहाँ है? मेरा तावीज़ तो गले में ही था। तो अब कहाँ है? याद करें, आपने कहीं उतार कर तो नहीं रखा? नहीं यार, मैंने उतारा ही नहीं था। आप परेशान ना हो, मैं ढूंढती हूँ, मिल जाएगा। अलीज़े पूरा घर देख लेती है, मगर तावीज़ कहीं नहीं होता। फिर वो शांजिल के गले में देखती है। शुक्र है उसका तावीज़ वहाँ मौजूद होता है और वो सुकून से सो रहा होता है। मगर आकिब का तावीज़ कहाँ गया? ऊपर से उस बदबू ने सर चकरा दिया था। अजीब घबराहट हो रही थी। आकिब ने पूरा घर देख लिया, मगर तावीज़ कहीं नहीं मिला। अच्छा, नहीं है तो मैं क्या करूं? आकिब ने अजीब अंदाज में जवाब दिया। आकिब, आपको क्या हो गया है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो हमेशा आपके साथ थी और हूँ। मुझसे ज़बान चलाती है। फिर वो शांजिल के गले में देखती है। शुक्र है उसका तावीज़ वहाँ मौजूद होता है और वो सुकून से सो रहा होता है। मगर आकिब का तावीज़ कहाँ गया? ऊपर से उस बदबू ने सर चकरा दिया था। अजीब घबराहट हो रही थी। आकिब ने पूरा घर देख लिया, मगर तावीज़ कहीं नहीं मिला। अच्छा, नहीं है तो मैं क्या करूं? आकिब ने अजीब अंदाज में जवाब दिया।
आकिब, आपको मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? आकिब ने जिस तरह अलीज़े को देखा, अलीज़े की जान ही निकल गई। तुझे ना बोलूं तो किसको बोलूं? तू ही मनहूस है। मैं मनहूस हूँ? आकिब, आपको क्या हो गया है? मेरा क्या कसूर है? मैं तो हमेशा आपके साथ थी और हूँ। मुझसे जबान चलाती है? आकिब ने अलीज़े को बालों से पकड़ते हुए ज़मीन पर फेंक दिया और मारना शुरू कर दिया। और कौन सी गालियाँ और अल्फाज थे जो उसको नहीं कहे। खुदा का वास्ता है आकिब, मुझे छोड़ दो। छोड़ दूं तुझे? चल सही है, निकल मेरे घर से। अपनी बेटी ले और चली जा। आकिब, मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं भी नहीं, मेरे घर से निकल। आकिब ने अलीज़े को हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया और परिहान भी उसको दे दी। आकिब, अल्लाह के वास्ते मुझे ना निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? लेकिन आकिब ने अलीज़े को निकालकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अलीज़े रात के इस पहर नंगे पांव अपनी बेटी को गोद में लेकर बाहर बैठी थी। दूर कहीं कुत्तों की आवाज़ें आ रही थीं। अलीज़े ने परिहान को अपने दुपट्टे में छुपाकर वहीं दरवाजे पर बैठ जाना बेहतर समझा और बार बार दरवाज़ा बजा बजा के आकिब को बुलाती रही। या अल्लाह, आज मुझे इस बंदे ने घर से निकालकर बेसहारा कर दिया, जिसने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। या अल्लाह, मैं इस वक्त कहाँ जाऊं? तेरे सिवा दुनिया में सिर्फ मेरे शौहर का आसरा था। आज उसी ने मुझे बेघर कर दिया। अंदर आकिब को इतनी नफरत हो रही थी अपनी बीवी से कि सोच रहा था, अच्छा हुआ इस मनहूस औरत को निकाल दिया, वरना कत्ल ही कर देता। इन दोनों को ये नहीं पता था कि दूर खड़ी दो आंखें उनकी बर्बादी पर खुश हो रही थीं, मगर वो आंखें ये नहीं जानती थीं कि शैतान से बड़ा ऊपर वाला रहमान है। वो परवरदिगार बड़ा है, अपने नेक बंदों को कैसे छोड़ सकता है। पास की मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फजर की आजान की पहली सदा। अलीज़े अजान सुनकर जवाब देती है और दुआ मांगती है। अचानक उसे महसूस होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आकिब किसी और चीज़ के असर में है। वो खुद ऐसा नहीं कर रहा, बल्कि कोई चीज़ उससे ये सब करवा रही है। शांजिल के साथ भी तो ऐसा हुआ था। इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? उस वक्त अगर मैं समझ जाती तो अल्लाह के कलाम से मदद लेती। अब मैं क्या करूं? अंदर भी नहीं जा सकती। अभी नमाज के लिए लोग भी जाएंगे। अगर मुझे इस हालत में किसी ने देख लिया तो आकिब की क्या इज्जत रह जाएगी। अलीज़े की आंखों में आंसू आ जाते हैं। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा, मदद फरमा। मैं बेबस और लाचार हूँ इस वक्त। अचानक उसे याद आता है, मैं आकिब का तसव्वुर करके दम करूं, शायद कुछ फर्क आ जाए।